Hi students, so today one more video I am doing to discuss about the important point from the chapter number 4, that is called planning. So we have seen regarding the planning features, importance, etc. But this video will discuss about the planning process. As we have known earlier, planning is the process of deciding in advance what is to be done in future course of time. So it is the process of deciding in advance or for future what is to be done, how is to be done, where is to be done, what is to be done, in what ways, etc., etc. So that is why it is a process. So it process involves decision making or choice making, you can say. So this process consisting of the following steps that is required to be followed by the every managers. This is a very important concept from the particular chapter called planning. Very often the questions are coming like discuss the process of planning or explain briefly the various steps involved in the process of planning. So today we'll discuss these various steps that are required in a sequential manner, and we'll try to understand how the planning process take place in any organizations by the management. What are the various things that to be considered? So in board you can see I have written 7 points. So these points are the, or these are the steps, you can say, planning process steps or the various steps of the planning process. So first one, you can see setting of objectives. So this is the first step that any managers or any management does, that is the setting of the objectives. Setting of the objective is the first and the foremost process in the planning, that is to be set the various objectives which may be set for the whole organization, you can say, and for each individuals working in the different departments. These objectives clearly lay down what is to be done in the organizations, and this process called setting of the objectives sets the overall objectives of the organizations, and they give direction for functioning of the all other departments and employees of the organization. So आई वांट टू से दैट, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो पहला स्टेप है सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, इसके द्वारा क्या किया जाता है, टॉप लेवल एम्प्लॉइज दे सेट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड these objectives clearly gives the direction to the various departments working in the organizations, and they try to formulate their plans according to the setting of the objective that are being done. तो जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है उसको प्राप्त करने के लिए जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना अपना प्लान बनाएगा ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया गया उसको पाने के लिए। से फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव ये सेट किया गया कि इस साल हम 30% इंक्रीज़ करेंगे हमारा जो सेल है, तो सेल को 30% इंक्रीज़ करने का जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है उसको पूरा करने के लिए एक हर डिपार्टमेंट्स क्या करेगा, वो अपना अपना प्लान बनाएगा। किस लिए बनाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है, इस बार हम 30% हमारा जो सेल है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स विल फॉर्मुलेट देयर इंडिविजुअल प्लान, अपना अपना खुद का प्लान वो लोग तैयार करेगा ताकि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट किया गया उसको कंट्रीब्यूट्स करने के लिए, उसको पाने के लिए। ठीक है, तो यही होता है सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स।
सेकंड जो स्टेप्स है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में वो है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो ये प्रीमाइसेस क्या है? देखो, पहले से हम बता के आ रहे हैं प्लानिंग इज ए फॉरवर्ड लुकिंग फिनोमेना। मतलब प्लानिंग जो करते हैं वो हम भविष्य के लिए करते हैं, और भविष्य के बारे में किसी को पहले से कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। वो हमारा कुछ धारणाएं होता है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जिसके आधार पे हम कुछ एजम्पशंस करते हैं, एज्यूम करते हैं, धारणा करते हैं, परिकल्पना करते हैं या तो कल्पना करते हैं, जिसके आधार पे हम वो अपना अपना प्लान को हम सेट करते हैं। तो प्रीमाइसेस आर नथिंग बट those assumptions which are being made by the managers are termed as the premises. The planning is always done for futures and which is very uncertain. So that is why every manager must assume, and these assumptions are termed as a premises. Remember, assumptions that are being done by the planners are said to be as a premises. So planning premises are assumptions relating to future course of conditions and events uh, based upon the entire structure of the planning. These premises, which are, as I have said, these are the future conditions and events. ये भविष्य के जो परिस्थिति या तो जो भी तुम्हारा क्या बोला जाता है, इवेंट्स होने से जो भी घटने जा रहे हैं, which are likely to have an effect on the achievements of the goals. जो परिस्थिति, जो भी कंडीशन होगा भविष्य में, जो कि हमारा लक्ष्य को पाने के टाइम पे उसका प्रभाव गिरेगा, तो वो धारणा ही हम उसको प्रिजम्पशंस या तो प्रीमाइसेस बोलते हैं। और दीज आर बेस्ड अपॉन द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लानिंग। हम किस तरह से प्लानिंग करते हैं उसके आधार या तो उसके ऊपर ही निर्भर होता है। सो एवरी प्लान इज ड्रॉन विथ सर्टन एजम्पशन। सो डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब यही है, जो भी परिकल्पना हम किए हैं वो भविष्य के जो कंडीशन होगा, भविष्य का जो परिस्थिति होगा, उसके आधार पे हम जो भी धारणाएं बनाते हैं और उस धारणा के ऊपर बेस करके ही हम परिकल्पना करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपिंग प्रीमाइसेस। हम ऐसे ऐसे प्रीमाइसेस, ऐसे ऐसे धारणा को हमको सृष्टि करना पड़ेगा, जिसके आधार पे हम जो प्लान किए हैं, जो भी लक्ष्य हम लिए हैं, उसको पाने की कोशिश करेंगे। जो भी बाधाएं आएंगे, जो भी समस्या आएंगे, उसको पहले से निर्धारित या तो एज्यूम या तो धारणा करने का मतलब ही है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। नंबर 3, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अभी कोई भी अगर लक्ष्य हम निर्धारित किए हैं या तो प्लान या तो परिकल्पना किए हैं, उसको पाने के लिए हमारे हाथ में शायद बहुत सारे रास्ता होगा। तो इन सारे रास्तों में से हमको इन सारे रास्ते क्या क्या है उसको चुनाव करना है। तीसरा जो स्टेप्स होता है प्लानिंग प्रोसेस में, हमारे पास में कोई भी काम करने का अलग अलग रास्ता क्या है उसको पहचान करने का मतलब ही है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मान लो अकाउंटेंसी का ही कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, तो उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या क्या मेथड है, वो सारे मेथड आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचान करना है। तो मान लो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास में 3 तरह का रास्ता है, तो इन तीनों तरह का रास्ता को जो चुन के या तो उन 3 जो मेथड है, मेथड को चुनने का मतलब ही है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये चला गया आपका तीसरा नंबर में। आपके पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। चलो मान लो कोई भी एक बिज़नेस को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, हमने प्लानिंग किया है कि हमारा बिज़नेस को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाने के लिए हमारे पास में अलग अलग रास्ता क्या क्या है। मान लो जैसे कि हमारा जो बिज़नेस अभी है उसको हम उसका कैपेसिटी हम बढ़ा देंगे, ये पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता ये भी हो गया, हमारे बिज़नेस के जो भी मतलब मिला जुला अलग बिज़नेस है उसको हम खरीद लेंगे, बढ़ा लेंगे बिज़नेस को। तीसरा होगा बाय प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। हम कोई आप एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे, हम उसको
अलग कुछ नया प्रोडक्ट बनाने का शुरुआत करेंगे तो भी ये भी तो एक्सपांशन हो गया ना, मतलब बिजनेस को बढ़ाना हो गया। तो सॉरी, ये जो तरीका है, ये जो अल्टरनेटिव क्या है, जैसे मैंने बोला जो पुराना बिजनेस है उसका कैपेसिटी बढ़ा देंगे, या तो दूसरा जो तरीका है कि हमारे तरीका का जो भी बिज़नेस है, एक कैटेगरी का बिज़नेस है, दूसरा बिज़नेस को हम खरीद लेंगे, ये भी एक बढ़ाने का एक जरिया हो गया। या तो हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ नया प्रोडक्ट और उत्पादन कर लेंगे। तो इन सारे रास्तों को चुनने का मतलब चुनाव, पहचान करने का ही मतलब है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अभी चौथा नंबर में क्या आ गया, जैसे कि इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे मैंने बोला आपको अकाउंटेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 3 मेथड आपके पास में आया, आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने। तीन नंबर का काम है आइडेंटिफाई करना, तो 3 जो किया, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इन तीनों मेथड को आप करके देखेंगे कि कौन सा मेथड में आपको करने का ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, इवैल्यूएटिंग का मतलब है एनालाइज करना, उसको चाल झाड़ के देखना, उसको पढ़ना, उसको परखना, जिसको बोलते हैं इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो 3 मेथड को आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कम समय में कर सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। तो आपको वो इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इवैल्यूएट करने का मतलब है वो तीनों मेथड में आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। पहला सॉल्व करके ही तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कौन सा मेथड में आपको इजीली कम समय में और आसानी से आप याद रख सकते हो। तो यही मतलब है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। 5 नंबर में आ गया, मान लो ABCD, ABC ये आपके पास में अकाउंटिंग सॉल्व करने का A एक मेथड था, B एक मेथड था, C मेथड था। तो ये आप लोगों ने तीनों मेथड के चाल जार के देखा। तो 5 नंबर में क्या आता है, ऑल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब है ये जो 3 हमारे पास में ऑल्टरनेटिव निकला है, इसमें से हम कौन सा सिलेक्शन करेंगे। तो मान लो हम लोगों ने देखा है B जो मेथड है, इसमें लेस टाइम लगता है और आसानी से यू कैन रिमेंबर, और आपको क्या बोलता है, लेस टाइम, इजीली रिमेंबर, इस तरह का आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आया, 2 नंबर मेथड। तो आप सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव मतलब आप B नंबर मेथड को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यही हो गया तुम्हारा क्या, सिलेक्शन एन ऑल्टरनेटिव और सिलेक्शन ऑन ऑल्टरनेटिव एक्शन जो आप करेंगे। 6 नंबर में क्या आ गया, छठवा जो स्टेप्स है, नंबर 6 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज दैट इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो आपने क्या किया है, ये जो प्लान बी को आपने सेलेक्ट किया, तो उसी प्लान को आप क्या करेंगे, छठवा नंबर में 6 स्टेप्स में यू विल इम्प्लीमेंट दैट बी प्लान इन योर कोर्स ऑफ एक्शन। काम करने का जो तुम्हारा सिलसिला है, उसमें आप ये प्लान जो सेलेक्ट किया उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द in the alternative course of action that you have selected already in the 5th step. So under this step the best selected plan are being implemented और put into the action you can say। तो implementing the plan का मतलब ये है, ये तीनों मेथड में से हमारा जो सर्वश्रेष्ठ, जो बेस्ट प्लान हम लोगों को मिला, वो मिला प्लान बी या तो मेथड बी, उसको हम अप्लाई करेंगे। The plan are communicated by managers to all the employees very clearly to motivate them and hence to derive their support। और ये प्लान बी अगर हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, मैनेजर्स लोग सभी तरह के जो एम्प्लॉयज़ होता है उसको अच्छी तरह से उसको समझा देंगे। तो क्या होगा, काम तो एक्चुअली मैनेजर नहीं करेगा, एम्प्लॉय लोग करेगा। तो उनको अगर प्लान के बारे में अच्छी तरह से समझा नहीं पाएंगे आप, तो उनको काम करने के लिए सुविधा नहीं होगा, वो मोटिवेट नहीं होंगे, सपोर्टिव नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या करना है, हमारा जो प्लान हम सेलेक्ट किए हैं बेस्ट प्लान, उसको आप अच्छी तरह से एम्प्लॉयज़ को हम समझा देंगे, तरीका कैसे क्या करना है, इसका मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, सब समझा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेट होगा, सपोर्टिव होगा और अच्छी तरह से उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में आपको मदद करेगा। द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज फॉलो अप एक्शन। तो हम लोगों ने पहले सेलेक्टिव किया, वी हैव डिसाइडेड एन ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग द प्रेमाइसिस, प्लानिंग करने का जो हमारा एजम्पशन है, दायरा है, उसको हमने
उस दायरे को हमने डेवलप किया, बनाया, फिर उस दायरे के आधार पे ही हमारे पास में कौन कौन सा रास्ता है उसको हम चुन के निकाला, फिर उसी रास्ता को हम चाल झार के देखा, ऑल्टरनेटिव इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हमने उसको अच्छी तरह से स्टडी किया, एनालाइज किया, इवेल्युएट किया, और उसके बाद में एक प्लान को हमने सेलेक्ट किया, मेथड को हमने सेलेक्ट किया और उसी प्लान को इम्प्लीमेंट किया। तो उसके आधार पे लास्ट जो स्टेप है फॉलो अप एक्शन, इसका मतलब ही है अंडर दिस स्टेप्स क्या क्या है, द मैनेजर्स मॉनिटर्स एज वेदर द प्लान आर बीइंग implemented correctly and whether the activities are made being performed according to the agreed schedule or not। तो फॉलो अप का मतलब यही है, जो भी परिकल्पना, जो भी मेथड, जो भी प्लान किया है, उस फॉलो अप एक्शन में क्या किया जाता है, मैनेजर्स लोग उसको देखते हैं कि हमने जैसा प्लान किया उस प्लान के आधार पे काम पे भी उस प्लान को इम्प्लीमेंट लगाया गया कि नहीं, और जितने सारे वर्कर्स है उस काम को, उस कार्य को जैसे सोचा गया ऐसा ये लोग कर रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को फॉलो अप एक्शन के द्वारा देखा जाता है। द प्लान आर बीन रिव्यूड पीरियडिकली, समय समय पर क्या होता है, हर दिन तो नहीं होता है, समय समय पे उस प्लान को और जो काम हो रहा है उसको कंपेयर, रिव्यू का मतलब स्टडी करके देखा जाता है कि एक्चुअली हम लोगों ने जैसे सोचा था वैसा हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देयर रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस, जैसे हम लोगों ने सोचा वैसा काम हो रहा है कि नहीं। मॉनिटरिंग ए प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ नीडेड, इट शुड बी appropriately modified in case of any circumstances, changing circumstances। पहले तो हम लोगों ने प्लान कर दिया और उस प्लान को बाद में जाके इम्प्लीमेंट किया, तो फॉलो अप एक्शन में ये देखा जाता है कि प्लान जैसे किया गया उस प्लान के आधार पे कामकाज ठीक से हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है उसमें कुछ चेंजेस लाना पड़ रहा है कि नहीं, परिस्थिति के आधार पे चेंजेस लाना भी पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ तुम्हारा ये फॉलो अप एक्शन में किया जा सकता है, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो व्हाइल डूइंग द प्लानिंग, ओके, प्लानिंग प्रोसेस। थैंक यू।